Assalamu alaikum. This is Sameed Ahmad Bhatt, and today I have first session of my interview with an entrepreneur. He's an aspiring entrepreneur. His name is Mohammad Muneeb, owner of X Laptops, a company, a firm that has been there for 2 years. He buys laptops, second-hand laptops. He repairs laptops as well, and he buys and purchases laptops. And further, he will know about his business from him. So, Muneeb, how are you? I'm good. How are you, Sameet? Fine, Muneeb. I'm Thank good. you. So, tell me Yeah. something about your business, Muneeb. First, an introduction, a brief introduction, how you started this, and why did you choose this business? Well, Sameet, this is a very long story how I came into this business. But for me, I was being a tech guy. I guess I like to open things from a very like a small age. I like to see things, what's inside them, and want to know like breaking cars and everything I did, break and fix it. So it was like in my natural instincts to fix things. So, you were a, So I I did not. knew that you were a CS guy as well. Yeah, exactly. I'm coming to the point. So while doing my computer sciences, I was usually opening my laptop myself, and whereas my other friend were scared to just open it, like it would break or something would happen into it. Na? So I usually looked at YouTube videos and etc. So I started after my graduation. I started my working at Affinity, where like 4 years I worked, and I switched to my business. So while doing my job, I started the career of X laptops as a side business because starting something new from scratch requires a big heart. Yes. So I did that. Um, in starting, people didn't understand what I was trying to like achieve from that, but slowly and gradually, people understand. Like there is a very huge gap in that repair business, and most of the people who do these business are not educated, and people who are Yes. educated are trying That's to find these kind of people, and people who can that are educated understand are their trying to who find can understand their problems and like this. exactly. So there was a huge gap, and still there is it is, and there are no well, I would say like there are like I didn't came across any person who is that much educated and doing this work. So yep, that's how I came into this, and So, alhamdulillah after you are like in this business for yes, about, it has been 2 years, right? yes exactly. So, I have started in 2018 while I was doing my job, and like gradually I increased it while doing job. Like 2 years of job plus that it was intermingling with each other, so the balance was out. so how So did I you had came to across like with this idea? Like there are many other ideas along with job, especially that you have less time in that. yes, So how did you came across this idea? Your father, you belong to a family business background. Your yes. father was in property business. So why didn't you go there, or like why this? Well, for me, the important thing was the thing you do with your heart is very important. The thing that is forced to you will not do it like you will do it like for 2 days, 3 days, 4 days. But if your heart is not in that thing, you will do it like for like uh, forever. You wouldn't feel anything about that. Yes. So my father was at a real estate business. Like in real estate business, I would say there are many up downs. There is Yes. not a consistency in that. Yes. Uh, yeah, but because it's like But providing. recently the barrier town and all those that were a very incentive for the a very good incentive for the real estate people. So this this is a Yeah, growing industry as well. but yeah, exactly. The But incentives are but very as you good. mentioned, your heart People, was not in that, so that's why you didn't yes, pursue that. exactly. So Munib, coming to the Yeah, I point, didn't pursue that. coming to the first question, like I would like to require, I would require to make a family tree that what your father did and what your grandfathers or your uncles, your paternal uncles did before. What did they do in business? Well, my If you have decent grandfather, knowledge of that.
When did your father start this property business firstly? Well, I'll start from my grandfather. He used to like way back in like 1940s, I would say. They used to have like a shop where furniture was made, wooden furniture. All right. So yeah. So my grandfather used to do that, and his brothers, they all were in the furniture business from like past before the Pakistan was built. All And right. after that, my father uh, didn't pursue that much the father's business. Their business was to your grandfather's business was in Pakistan or from it was in the India It subcontinent. was no. It was in Pakistan. It was in Pakistan. So Yeah. It was in in Pakistan, not Karachi in or in Karachi or in in the Karachi, Karachi, in Karachi. Karachi, Right. in Karachi. And that was Yeah. wooden furniture, right? Yeah, wooden furniture, like the chairs with um, basic design that was like in that past days. So they used to do that, and after that, like uh, there are ups and downs in every business there are. So my father just went for like a real estate business in Your like father went for a business right away, or did he do some job no. before starting a business, right? As you So said my that there father, was a downfall in your yeah, grandfather unit. exactly. My father also went outside of Pakistan as well for All right. seeking job at that like around 22, but he came back because family was more important than job. So he came Yes. back and started the uh, real estate business in like 1988. So he is like very uh, firm in this position. So So yeah, many people know him here yes. by so So you had but started in real estate in Tawhid Commercial or somewhere else firstly? so first he was like in Zamzama. All right. He started from Zamzama because in like that days it was totally a Achha, sand play. I didn't know that Zamzama was developed at that time as well. Yes, Zamzama was developed. I guess there was only a few shops at that time. It was not that much developed All because right. Zamzama was before Tawheed, and even the places Phase 5, Phase 6, they were all deserted at that time. Yes. Like, yeah, like you, yeah. So So he did that. there was a roller coaster ride with your ancestors and your fathers. They came into the but they had a will to always go for a business. Exactly. That's why Yes. after doing a job, they left job and they came into business side. So they had Yes. a will of doing this business and a heart to do business. Yes. Exactly. So the Because next, at uh, yep. so the next question, Muneeb, is what's your business and how are you taking it? Mhm. Strategies में क्या फर्क है like जो property की जो strategies है and the strategies in laptop obviously their marketing their operations are Mhm. totally different. So Exactly. ये आप किस तरह treat करते हैं इसको? Uh, अगर हम लैपटॉप को और प्रॉपर्टी को अगर हम एज अ बाय प्रोडक्ट ही लें, एक दोनों प्रोडक्ट है, आपको दोनों सेल करनी है. सो अगर प्रॉपर्टी सेल करनी है तो आपको बायर चाहिए, और लैपटॉप सेल करना है तो आपको बायर चाहिए. बायर क्या चीज़ बाय करता है हमेशा? वो इस चीज़ जो उसको हमेशा सस्ती मिले और क्वालिटी की मिले, हमेशा याद रखिएगा. तो मेरा जो मेजर काम होता है इसके अंदर वो ये होता है कि जो लोगों की रिक्वायरमेंट है ना उसके हिसाब से वो चीज़ ढूंढ के दी जाए, ताकि वो उसमें ना नहीं कर पाए. अगर वो ना नहीं करेगा तो ही विल कम बैक अगेन एंड अगेन टू मी. दैट इज द फर्स्ट रूल ऑफ आई गेस बिजनेस, दैट व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट. प्लस ये कि जो मेरा पर्सनल था गोल जो मैंने स्टार्ट किया था वो ये था कि आप बेस्ट रिपेयर सर्विस विद सिंसेरिटी दो. मतलब अगर आप कहीं आप आज लैपटॉप लेके सदर पहुंच जाओगे ना, तो आपको एक रिपेयर करने वाला 1500 में भी रिपेयर कर रहा है, 2500 में भी रिपेयर कर रहा है, मगर यू डोंट नो द ऑथेंटिसिटी कि क्या रिपेयर करके देगा या आपका खराब ही एक कर तो देगा. यूएसपी जो मुझे पता चला था वो ये था कि आप जो है वो 2 मंथ्स की गारंटी देते हैं जो कराची में कोई भी नहीं देता लैपटॉप्स में. हाँ एग्जैक्टली, ये एग्जैक्टली ये तो क्योंकि मैं अपनी तो मशीन ये पे आपका ट्रस्ट करता हूँ ना यूएसपी कि क्योंकि आपको इसका टेक्निकल नॉलेज भी मेरा ख्याल है इसलिए आपको ट्रस्ट डेवलप हुआ हुआ है. वही आप वाली एग्जैक्ट बात कि इसमें कोई पढ़ा लिखा आया ही नहीं है तो वो ज्यादातर लोगों को चुना ही लगाता है. ऐसा ही बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही. इवन अगर मैं मार्केट से खुद लैपटॉप भी खरीदता हूँ, इवन दो आई टेस्ट देम, तो वो मुझे नहीं वारंटी देते, तो मैं फिर भी खुद टेस्ट करने के बाद उस पे वारंटी देता हूँ कि यस दिस इज अ गुड प्रोडक्ट.
और जो नहीं होती आई रीपे देम बैक। सो और रिपेयर कुछ जो है वो सर्विसेज सेपरेट हैं, और आपकी जो लैपटॉप बाइंग एंड सेलिंग की जो है वो जो है सेकंड हैंड लैपटॉप्स हैं या नए भी हैं? हाँ नहीं, डिपेंड्स अपॉन द नीड ऑफ माय क्लाइंट, क्योंकि मेरे पास सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जिनके लिए मैं अच्छा, काम करता आप हूँ। इस तरह करते हैं कि पहले आपके हम्म, पास क्लाइंट आता है, फिर आप उसके लिए मिडिल मैन का काम करते हैं इन हम्म, बाइंग और सेलिंग, और रिपेयर तो आप खुद ही कर लेते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। रिपेयर्स के लिए मैंने तो आपको जो इन्वेंट्री भी मेंटेन प्रोफेशनल नहीं करते रिपेयर्स हैं फिर? वो मैंने कॉन्टेक्ट्स में रखे हैं। मैं अपने पास जो भी प्रोफेशनल रिपेयर्स हैं वो मेरे कॉन्टेक्ट्स में होते हैं। इन केस अगर कोई रिपेयर ऐसा होता है जो कि मेरी डोमेन से बाहर है, तो मैं उनको रेफर करता हूँ, ठीक तो है। फिर वो मुझे करके दे केम बैक टू मी। तो इस तरह ये साइकिल जो है ना, मतलब वो जो प्रोफेशनल रिपेयर वाला ढूंढने का जो प्रोसेस है ना, वो एक सबसे मुश्किल काम होता है। कि सही है। अगर आपका हार्डवेयर खराब है, उसको रिपेयर करने की पॉसिबिलिटी अगर है तो वो सही बंदे के पास जानी चाहिए। खराब के पास जाएगी तो वो चीज़ खत्म ही हो जाएगी फिर। थोड़ा बहुत आप रिपेयर कर लेते हैं, बाकी तो आप जाहिर हम्म, आउटसोर्स ही करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, तो बिल्कुल बाइंग ऐसा और ही है। सेलिंग में लाजमी बात है, क्योंकि आपको क्लाइंट आपके पास पहले आता है तो आपको इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करते। जब वो आपको हाँ, डिमांड करेगा फिर उसके बाद ही आप जाएंगे, लाजमी बात है, कोई ढूंढने। इन्वेंट्री एज सच लाइक 3-4 पीसेस या जो स्मॉल प्रोडक्ट्स हैं वो होती हैं। मगर ठीक है। हाँ, इन केस अगर वो किसी की ज़्यादा इन्वेंट्री आ जाती है तो फिर आपको सर्च करनी पड़ती है, मार्केट से उठानी और पड़ती है वो चीज़। पार्ट्स जो उसमें कोई रिलेटेड पार्ट्स हैं वो भी आप वहीं ढूंढ लेते हैं तब जब आपको हाँ हाँ डिमांड हाँ, आती है? वही एग्जैक्टली एग्जैक्टली। नहीं नहीं, वो मतलब कोई रिक्वायरमेंट आती है तो फिर उसके हिसाब से मिल जाती है। अवेलेबिलिटी होती है मार्केट में। ठीक है। कुछ मॉडल्स ऐसे होते हैं जिनकी अवेलेबिलिटी नहीं होती, फिर बाहर से इंपोर्ट भी करनी पड़ती हैं चीज़ें। ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट लीडरशिप प्रॉब्लम्स अकर्ड, एनी प्रॉब्लम इन सक्सेशन एंड इनोवेशन? तो आप लीडरशिप जो है वो कैसे करते हैं? आपके अंडर सबऑर्डिनेट्स कोई हैं या जिनसे आप काम करवाते हैं, वो भी तो आपके एक तरह से सबऑर्डिनेट्स ही हो गए, जैसे आप आउटसोर्स करते हैं, तो वो बिल्कुल। उनको कैसे मैनेज करते हैं? ऑलवेज रिमेंबर, पे वेल, गेट द गुड सर्विसेज। अगर आप पे वेल नहीं करेंगे, आपको कोई काम वक्त पे भी नहीं मिलेगा, ना आपको अच्छी सर्विस मिलेगी। ये रूल है अगर आपने हर किसी को खुश रखना है। तो ऑलवेज गिव गुड हैंडसम अमाउंट। अगर कोई काम कर रहा है तो ऑलवेज नो व्हाट अ पर्सन डिजर्व्स। अगर आप उसकी डिजर्विंग अमाउंट देंगे तो वो हमेशा खुशी खुशी काम करेगा, वो कभी आपको मना नहीं करेगा। तो ठीक मेरी है, पहली मतलब स्ट्रैटेजी यही होती है कि आप उस बंदे से जिससे काम करवा रहे हो उसको खुश रखो, ताकि वो आपका कॉन्स्टेंटली काम करता रहे। वो ये नहीं बोले कि यार ये क्या है, यूं है वो है। तो मेरा पहला रूल तो ये होता है। उससे ये होता है कि मैं सेल्फ सेटिस्फाइड होता हूँ कि वो बंदा मेरे से खुश है, तो अगला बंदा मुझसे खुश ठीक, होगा जो मुझे काम दे रहा है ना, कि वो काम वक्त पे मिल रहा है उसे। बिल्कुल। तो मतलब पहला रूल ज्यादातर तो मेरा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, जो कि विद रिवॉर्ड्स एंड ऑल। जो इंट्रिंसिक एग्जैक्टली। मोटिवेशन का भी कुछ करते हैं कि पैट ऑन द बैक और इस तरह की कोई चीज के शाबाश भी देते हैं कि यार काम अच्छा किया तुमने, या मतलब उसको फीडबैक भी हाँ चाहिए होता है कि यार क्लाइंट खुश हुआ है, जैसे कोई इस तरह की हाँ, बात। नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल एग्जैक्टली आज तो आजकल व्हाट्सएप का दौर है तो उनको तो बिल्कुल मैं अप्रिशिएट तो हर वक्त ही करता हूँ। मतलब जो सबसे बड़ी अप्रिशिएशन होती है वो जो पैसे वो मांग रहे हैं उनको वो मिले, आप हम्म, उसमें नेगोशिएशन नहीं करो। बिल्कुल। तो वो उनके लिए बेस्ट चीज़ होती है। प्लस ये कि आपको ये भी सर्च करना पड़ता है कि द क्वालिटी पर्सन जो है वो हर किसी के लिए काम नहीं करता। अगर ठीक क्वालिटी बात है। पर्सन हर किसी के लिए काम करेगा ना, तो फिर वो उसका भी वही हशर होगा जो सबसे सस्ते लगा होता है। उसमें बिल्कुल इतना काम होगा और किसी का भी काम नहीं होगा फिर। बिल्कुल। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है लीडरशिप का, जो मुझे अपने तरफ से नजर आया। तो प्लस ये आगे, कि आपको जो है, जी जी। आगे आपने सक्सेशन का क्या सोचा हुआ है? लाइक आप हैं, आपको तो चले टेक्निकल नॉलेज है, अगर ये आप कंपनी बड़ी होती है इंशाल्लाह, आप इसको हम्म, परस्यू करते हैं, आपके पास टाइम होता है, फिर क्या करेंगे? मैनेजर्स कैसे हायर करेंगे? ऑपरेशंस के लिए अलग करेंगे या क्या करेंगे? फिर इसका कुछ सोचा इवन हुआ है दो, आपने? ये बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने लिंक्डइन पे 2 जॉब्स पोस्ट की अपनी ही पेज के लिए कि कोई टेक्निकल नॉलेज रखता है, और इंटरेस्टिंगली नो वन केम टू दैट। और इधर लोग जॉब्स ढूंढ रहे हैं क्योंकि लोगों के पास स्किल सेट नहीं है, और लोग समझते हैं कि बहुत ही कोई वो है काम। ये बिल्कुल ऐसा कोई काम नहीं है, एंड इट मेक्स टू मच मनी। हम समझते हैं कि नौकरी करने से बहुत पैसा मिलता है। नहीं, अगर आपके पास एक अच्छा स्किल सेट है और इफ यू आर बिल्कुल लाइक, आपको फियर नहीं है काम करने में, तो देर इज नो हेजिटेशन। इवन ये जितने काम है ये सारे वो लोग कर रहे हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, बिल्कुल। तो जिनको सिर्फ ये पता है कि ये आईसी यहाँ पे लगती है, ये यूं होता है, ये यूं होता है। जब मैं टेक्निकल नॉलेज के ऊपर उनसे बात करता हूँ तो उनको नहीं पता होता, मगर जो चीजें वो कर सकते हैं वो मुझे नहीं पता होती। तो देर इज अ वेरी बिग बैरियर। सही है। तो तो ये, फिर हाँ, ये है कि अगर मैं किसी को सक्सेशन करूंगा तो यस आई विल लाइक
आई विल फर्स्ट टीच देम कि हाउ होता किस तरह ये काम, कि पहला स्टेप ये क्या है कि आपको डरना नहीं है कि आप कोई मशीन खोल लो, इट्स नॉट लाइक अ बॉम्ब, ये मतलब एक टेक्निकल स्टेप है खोलना है, उसके मतलब स्टेप्स हैं हर चीज करने के। अगर आप अपग्रेडेशन करना चाह रहे हो या उसकी ये देखना चाह रहे हो कि सिस्टम की बॉटलनेक्स क्या है, तो आपको हर चीज की थोड़ी बहुत नॉलेज जरूरी है हार्डवेयर के लिहाज से। बिल्कुल। तो आप बस जैसे आपने कहा है कि आप पढ़े लिखे लोग, इसमें ज्यादातर पढ़े लिखे बंदे को तो ये होगा ही नहीं कि मैं मशीन को खोलूं, वो कहेगा मैं मैकेनिक थोड़ी हूँ। तो वो आप फिर कैसे हायर करेंगे? इस तरह के क्या सोचा है आपने कि किस तरह के लोगों को हायर करेंगे? हायरिंग का कैसे होगा आप पे? मतलब क्या उनसे खुलवाएंगे पहले ही, ये पहले कहेंगे मशीन खोलो? नहीं, पहले तो देखो उनका इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो कि लोग समझते हैं कि लाइक इट्स डिफिकल्ट थिंग, इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। मगर आपको हर चीज, मतलब आप कभी सुनियारे से पूछे ना कि वो कितना पढ़ा लिखा, बोलेगा यार मैं तो मैट्रिक भी नहीं किया हुआ, कमाता कितना बिल्कुल हूँ, लाखों में। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये नहीं है कि द जॉब इज लेस, आपने अपने आप को कम समझा हुआ है, ये मसला है। जी समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो बस यही है, लोगों के अंदर मेच्योरिटी आएगी वक्त के साथ साथ, उनको समझ में आएगी कि ये भी एक बिजनेस मॉडल है जो कि अनयूज जा रहा है पाकिस्तान में। यस। सो लाइक लेट्स होप, मैं मतलब कोई लेक्चर बना लूंगा किस तरह करना है और किस तरह इसको परसू कर सकते हैं। सो दैट वुड बी द आगे के नेक्स्ट थिंग। फ्यूचर व्हाट इज द फ्यूचर प्लानिंग? आगे के फ्यूचर प्लान्स क्या है? इसको कहाँ लेके जाना है? कहाँ देखते हैं इसको अगले या 5 फ्यूचर साल प्लान में तो जैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, फ्यूचर प्लान्स तो मेरे यही है कि इट वुड बी द बेस्ट रिपेयर सर्विस लाइक प्लस दी लाइक स्लोली स्लोली सही इसको, बिजनेस। स्लोली हाँ इसको इसको मतलब बढ़ाएंगे। लाइक जॉब भी है आपकी, तो जॉब को मुकम्मल तौर पे तो नहीं भी छोड़ा जा सकता, नहीं, स्पेशली कोविड आई में। हैव लाइक नहीं, आई हैव लेफ्ट द जॉब लाइक इट्स लाइक 4 months now. अच्छा I अच्छा। am like properly doing this work. अच्छा ये There is too फुल much टाइम में potential. शुरू हुई, अच्छा। Yes, exactly. It has too much potential, but you have to find the perfect guys. Those require services. So currently, people like with the software houses I'm engaged with, I have Jump Activation, Miasa, plus Robotics. These are three software houses that I'm providing services. So the first question they asked me, why are you in this service? So the reason I told them, you were searching for me. You were not बिल्कुल। यस। you were not finding the perfect guy for your, like you are, if you're looking for like, वो कहते हैं कि यार हमें ना कंप्यूटर पे बेच के जाता है कोई वेंडर, तो हमें पता नहीं चलता कि वो सही है खराब है, 15 दिन बाद ना वो बंदा मिलता है ना वो बंदे की रिसीट बिल्कुल मिलती है, वो गायब हो जाता है। बिल्कुल। कहता है ये आपका यही पहला गैप ऐसा आपने मैनेजर है। एनालाइज किया है, गैप आपने आइडेंटिफाई किया है, तो उसी को फिल करने के लिए, मतलब वही वाली एग्जैक्टली बात कि आप मुझे ढूंढ रहे थे, मैं आपको नहीं ढूंढ रहा था। तो एग्जैक्टली। एनी डिसएग्रीमेंट्स दैट अरोज विद योर फैमिली जब आपने ये बिजनेस परस्यू किया, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट्स या इस तरह की कोई चीज आई कि उन्होंने बोला तुम इसमें क्यों आ रहे हो, इस तरह की कोई बात हुई? थोड़ा बहुत कह सकते हैं आप, और मतलब फैमिली ने जो है अगर सपोर्ट किया तो फिर कैसे सपोर्ट किया? डिसएग्रीमेंट इतना ज़्यादा तो नहीं आया, क्योंकि लाइक इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ वर्क, बट ये था कि अगर जॉब को पैरेलल रख के किया जाए, तो वो एक उनका था कंसर्न के हालात सही नहीं है ये हुआ। तो बट आई टोल्ड देम लाइक, लाइक दे वांटेड यू टू फॉलो द सेम रूट दैट योर फादर डिड, कि जॉब पहले कर लो, कुछ कमा लो, कुछ सेट हो जाओ, कुछ सीख लो, फिर उसके बाद यू हाँ कैन परस्यू द बिजनेस सो दैट यू नो दैट व्हाट्स गोइंग इन द मार्केट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। नहीं, थोड़ा सा भी जो होता है ना, कोविड की वजह से सिचुएशन कुछ अजीब सी हुई थी ना, कि लाइक इट वाज बिजनेस कैसे सस्टेन करेगा क्या करेगा। कोविड में जितना काम मेरे पास आया है शायद, क्योंकि सारी दुकानें बंद थी और आई वाज ऑनलाइन अवेलेबल, तो लाइक पीपल वर कमिंग, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, घर से ही सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे थे सारे, जो जो पॉसिबिलिटी थी वो होती रही। लाइक मुनीब, लेकिन मुझे ये भी तो बताएं आप कि हम्म। ये आप वो अभी जो आए हैं कोविड के दौरान, वो विलिंगली शायद नहीं आए, वो तो जॉब आपकी रह गई तो आप इसमें आपको आना पड़ा, लाइक यू वर थ्रोन इन द स्विमिंग पूल टू स्विम। नहीं ऐसा नहीं था, उससे ये पहले तो पहले चले आपका था, लेकिन ये जो आपने इसको एक्सपैंड किया है अब ज्यादा, ये 4 महीने में, हम्म। तो ये जॉब खत्म होने के बाद किया है ना? हाँ एग्जैक्टली देखो, बिजनेस को एक्सपेंड कर ही बंदा तब सकता है जब उसके पास टाइम होगा। अगर वो दिन के जो है 8 घंटे जॉब को देगा, तो बाकी कैसे टाइम मैनेज करेगा, उसके ब्रेन में इतनी कैपेसिटी होती ही नहीं है। तो पहला तो लाइक कह सकते अगर हैं कि हाँ, किसी हद तक अनविलिंगली भी आपने किया है ये।
बाद में? हाँ नहीं, असल में मेरे पास जब क्लाइंट्स फिक्स हो गए थे ना, कि मतलब अब ये है कि आई हैव बैक, कि वो कहीं नहीं जाने वाले, वो मेरी क्वालिटी से मतलब सेटिस्फाइड है, तो लाइक आई स्टेप बैक, मतलब बट ठीक है, अब फिर काम करना ही है तो फिर अपना प्रॉपर काम करें, क्या बिल्कुल जरूरत है इतना जो है इधर उधर घूमने की। बिल्कुल। तो ये इसका फायदा ये था, फैमिली वाज लाइक सपोर्टिव, और तो द फैमिली फैमिली। ने नहीं सपोर्टिव मॉरल सपोर्ट तो की होगी, एनी फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली और नॉट? या वो वही जॉब से जो सेविंग करते थे वही यहाँ पे इन्वेस्ट किया है? अभी तो जो मेरा मिशन ही ये था कि अपनी सेविंग से इसी को इनिशिएट करना है, ताकि जो है ना वो अपनी सेल्फ सस्टेनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप खुद सेल्फ सस्टेन करके नहीं स्टार्ट करें, इसका मतलब ये है कि यू आर नॉट ईगर टू डू दैट बिजनेस। बिल्कुल। अगर आपने किसी से अलग से ही पैसे पकड़ के बिजनेस स्टार्ट करना है, तो फिर इसका मतलब है आप बिजनेस नहीं कर रहे, लाइक यू आर जस्ट टेकिंग अ हेल्पिंग हैंड फ्रॉम समवन एल्स। और तो पैसे की कदर भी तभी आएगी जब आपने खुद अपने पैसे लगाए कमा के होंगे। अपने लगाए होंगे। बिल्कुल। ऐसा ही है, ऐसा ही ऐसा ही है। तो ये जो है, तो ये हाँ, तो एम्प्लॉयज का तो पूछ लिया मैंने कि आप उनके साथ कैसे हैं, आप उनको जो है वो पे हैंडसम, और यही आपकी स्ट्रैटेजी है उनको मोटिवेट करने की। तो एग्जैक्टली। अच्छा, फाइनेंशियल बीच और सपोर्ट आपको नहीं दी, ठीक है, मतलब दे तो सकते थे लेकिन आपने खुद नहीं दी, सेल्फ हाँ से। एग्जैक्टली, खुद दे सकते थे बट आई डिडंट टॉक। ठीक है। ठीक है। तो व्हाट इज योर मैसेज टू द फैमिली बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स इन फ्यूचर, कि उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें भी आपका रूट लेना चाहिए, दे शुड डू जॉब फर्स्ट एंड देन गो टुवर्ड्स बिजनेस, और लाइक दे शुड टेक मनी नहीं, फ्रॉम द फैमिली एंड देन गो, मतलब क्या रूट होना चाहिए उनके लिए? ये और क्या आई वुड उनको सजेस्ट। फैमिली बिजनेस में आना चाहिए या आपकी तरह नया वेंचर स्टार्ट करना चाहिए, ये भी एक बात है। हाँ एग्जैक्टली, असल में अगर आप बिजनेस की तरफ आना चाहते हो ना, फर्स्ट ऑफ ऑल सी द गैप। क्या आपकी नज़र में कोई ऐसा गैप है जो कि ऑलरेडी फिल नहीं हुआ? और अगर कोई गैप ऐसा है जिसमें कंपटीशन बहुत लेस है, अगर नज़र आ रहा है आपको कि यार ये ऐसा गैप है जिसमें मैं फिल कर सकता हूँ, तो देयर इज नो एज लिमिट इन बिजनेस। बहुत छोटी एज के लोग भी बिजनेस कर रहे हैं, और मतलब बहुत बूढ़े बूढ़े भी बिजनेस कर रहे हैं। सो आई वुड रिकमेंड कि फर्स्ट सी द गैप। अगर गैप अच्छा होगा ना, आपके पास बिजनेस ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी बहुत तेज होगी। और मोटिवेशन के लिए आप जो है वो इलॉन मस्क को पढ़ें, आपको अंडरस्टैंड होगा कि बिल्कुल दुनिया जो है वो किस तरीके से बदली जा सकती है विद जस्ट एन आइडिया। और लाजमी नहीं है कि दुनिया आपके आइडिया को एक्सेप्ट करेगी, द टाइम विल प्रूव दैट आइडिया। और और बिजनेस इज नॉट एन इजी थिंग टू डू। फर्स्ट जो चीज है बिल्कुल। ना, आपको इसके लिए कैपेसिटी पहले पैदा करनी पड़ती है कि लाइक आर यू विलिंग टू वर्क 24/7? रिस्क टेकर भी आर यू होना जरूरी है, रिस्क टेकिंग एंड रिस्क? बिल्कुल हार्ड वर्क। एग्जैक्टली, बिल्कुल। रिस्क के बगैर तो आप बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर सकते ना। लाइक इवन इफ यू हैव गैप इन बिजनेस, लाइक कोई उसको नहीं अवेल कर रहा, मगर आपने ये रिस्क लिया है, तो ये भी कि शर्त नहीं है कि वो चल जाएगा। डिपेंडिंग अपॉन द नीड के पीपल को रिक्वायरमेंट है उस चीज की या नहीं। बिल्कुल। आप अगर वो देखो ना, चाय शाय का जो पहला खुला था एक चाय शाय वाला, वो अकेला खुला था, तो उसने एक रिस्क लिया था, शायद जी। चल जाए ना चले। तो बिल्कुल। विद द पैसेज ऑफ टाइम आज वो पूरी रोड भरी हुई है उन्हीं पूरी। चाय शाय वालों से। जी। तो ये आपको पहला नया स्टेप लेना कंसेप्ट पड़ता था है। बिल्कुल। हाँ, एक नया कॉन्सेप्ट था ना हमारे लिए। तो इसी तरह है, बहुत सारे बिजनेसेस हैं। लेकिन और फैमिली बिजनेस। बिजनेस वाले जो मतलब एक एक तो होती है एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि एक नया अलग बिल्कुल। सा वेंचर, एक इंट्राप्रेन्योरशिप है। लाइक फैमिली बिजनेस वाले तो ज्यादा इंट्राप्रेन्योरशिप रहेंगे ना, कि वो अपने उसमें रहते हुए इनोवेट करें, तो उनके लिए कुछ मैसेज है, वो कैसे कर सकते हैं? अगर फैमिली ओरिएंटेड बिजनेस है तो वो ऑलरेडी रूट्स तो उसके पास हैं बिजनेस की ना। लेकिन इनोवेशन तो करनी है ना विद इन द बिजनेस इनोवेशन तो ग्रो तभी एंड। आएगी जब वो एजुकेटेड होगा ना। अगर वो बंदा एजुकेशन लेगा, तब उसको इम्प्लीमेंटेशन समझ में आएगी कि वो बिजनेस के अंदर क्या चीजें दुनिया कर रही है और मैं नहीं कर रहा, या मेरी फैमिली नहीं वो कर रही। जब वो तो उसे गैप और वर्ड। एजुकेशन तो चले आधा हुआ, आप बाकी जो मतलब एक्सपीरियंस अगर आउटर वर्ल्ड का, उसको पहले कहीं जॉब भी करनी चाहिए या नहीं? इसके बारे में आपका क्या अब जैसे स्टांस है? देखो, मैं बताता हूँ तुम्हें, एक कंपनी है जो कि समझो कि करियाना स्टोर है, ठीक है। उनका जो जद्दी पुश्ती काम चल रहा है इस चीज का, ठीक है। और वो लैग कर रहा है एक इम्तियाज स्टोर से compete करने में। वो क्यों कर रहा है? क्योंकि अपने आप को उन्होंने डिजिटलाइज नहीं किया, उन्होंने अपने आप को ऑनलाइन नहीं लेके गए, उन्होंने अपना स्पेक्ट्रम बड़ा नहीं किया, ठीक है ना। ठीक। तो इस वजह से वो पीछे रह जाएगा। वो करियाना स्टोर है और इम्तियाज वाला उससे लीड ले जाएगा, और अब आप देखेंगे हर गली में इम्तियाज खुल रहा है। वो क्यों खुल रहा है? क्योंकि वो डिजिटलाइजेशन के साथ
ऑफर्स ऐसी बना रहे हैं जो कि हर किसी के मोबाइल की रीच में आ गए हैं, समझ रहे हो? बिल्कुल मतलब आप फोन खोल के आज चेक कर लेते यार आज ये रेट है, अब वो करियाने की दुकान पे बंदा पहुंचेगा तो पता चलेगा कि यार ये रेट है। तो बिल्कुल उसका फैमिली बिजनेस जो है वो उसका रिक्वायर करता है पहले नॉलेज और कंपटीशन के मार्केट में क्या है। बिल्कुल नॉलेज ऑफ इसी द तरह बिजनेस इटसेल्फ एंड देन द कंपिटिटर्स एंड देन द एग्जैक्टली कस्टमर्स एज एग्जैक्टली वेल, कि कस्टमर्स क्या यस चाह रहे हैं, कस्टमर्स का मूड जो है वो कैसे चेंज हो चुका है ओवर द इयर्स, उन्हें बिल्कुल क्या चाहिए। ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही। तो पहले आपको स्टडी करना पड़ता है कि आपके कॉम्पिटिटर असल में हैं कौन, और फिर आप वो देखें कि उन्होंने अपने आप को कैसे प्रोग्रेस कर लिए, और अब आपके अंदर वो क्या खामियां हैं जो कि आपकी कंपनी के अंदर रिक्वायरमेंट है जो पहले रह गई थी और अब हम बढ़ा सकते हैं। तो आप तो भी ये ये मार्केट में फिरते हैं, आप तो कंपेटिटर एनालिसिस इस तरह करते होंगे बिल्कुल। हाँ एग्जैक्टली ये तो मैं बिल्कुल करता हूँ। इसी से मुझे आइडिया होता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, और क्या चीज़ का गैप है। उसी से मतलब आपका ना विजन क्लियर होता है कि आप किस डायरेक्शन को अचीव करना चाह रहे हो। सो लाइक मतलब फैमिली ओरिएंटेड बिजनेस में उसके पास एक तो एज यही रहेगा हमेशा कि वो बिजनेस ऑलरेडी स्टेबल है। अगर वो उसी को उसे परस्यू उसी एक तरीके से उसके, करता रहेगा। हाँ बिल्कुल, उसको एक तो जीन्स में भी वो मिला होगा जैसे आपको मिला है, बिल्कुल, कि एक ऐसा ही है। मैं बिजनेस का एक हाउन हूँ, और जो है एक नॉलेज या एक विल, और बाकी जो है वो नॉलेज के साथ, और क्या नाम है, अगर उसने एजुकेशन ली है और एक्सपीरियंस है तो उसके साथ, हाँ ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। तो मुनीब, वेरी नाइस टू हैव यू ऑन जूम मीटिंग, आई वुड हैव लव टू मीट यू इन पर्सन, बट श्योर ड्यू श्योर टू व्हाई नॉट। ड्यू टू दिस फैक्ट कि आपके फादर को कोरोना हो गया था, तो इस वजह से हमारी मुलाकात जो है वो नहीं हो पाई। अल्लाह जो है यस उन्हें शिफा दे, और वो जो है मे हिज हेल्थ इम्प्रूव, एंड आमीन आमीन। दिस अभी तो काफी हो गए uh, बेटर यार अल्हम्दुलिल्लाह। with this, I would like to sign off. And ओके होपफुली यू गेट माय मैसेज क्लियर। business is the best thing to do and the hardest thing to do as well. Do it wisely. That's my बिल्कुल, message. Hopefully you so get it. yes, so Muneeb, that is all from my side, and hope to see you again. Then Okay, okay. okay, Allah Hafiz. Hafiz. Allah Hafiz.